Hello everyone. After completing the chapter of triangles, now here we are for the chapter quadrilateral of class 9's maths. Okay. So before entering into the chapter, we need to know about what a quadrilateral means. Okay. What do we actually mean by a quadrilaterals? Okay. A quadrilateral is a figure. A quadrilateral is a figure which has total four corners. Which are total four corners. Likewise, when we are reading about triangles, how many corners does a triangle have? It has three corners. So any of the figure which have four corner can be said as a quadrilateral. And I want to know you about one more thing, that the angle sum, like the angle sum of a triangle is how much, sir? 180 degree. Similarly, the angle sum of a quadrilateral is how much, sir? 360 degree. Okay. The angle sum of a quadrilateral is how much? 360 degree. Okay. Now, now we have, after moving forward, okay, look at this. Here I am drawing some types of figures that you have already learned you in your previous classes. Okay, square, rectangle, a parallelogram, and a rhombus. Okay, if we go into a rectangle, sir, does a rectangle have four corners? Yes, sir. A rectangle have four corners, sir. Okay. Does a square have four corners? Yes, sir. A square also have a four corner. Does a parallelogram has four corners? Yes, sir. A parallelogram has four corners. Does a rhombus has four corners? Yes, sir. A rhombus does have four corners. So what are the differences among all these figures, sir? Look, first I will tell you about a parallelogram, then we go into rectangle, then square, then rhombus. Okay. अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज का अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज का तो इन केस ऑफ अ पैरेललोग्राम opposite sides are equal and parallel to each other. What I said, opposite sides. For example, let's take A, B, C, D. Here it is saying that AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, and sir, AD is parallel to BC, and AD is parallel to BC. Not only that, sir, AB also is equals to CD and AD also is equals to BD, sir. Okay, which means that AB is equals to CD and AD is equals to BD. So in case of a parallelogram, opposite sides are equal and parallel to each other. In case of a rectangle, sir, similarly, sir, in case of a rectangle also, opposite sides are parallel and equal to each other. So sir, now you will ask, आप मुझसे जरूर पूछोगे सर, तो फिर डिफरेंस क्या है सर एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल में? सर रेक्टेंगल में एक इंपॉर्टेंट चीज ये होता है सर, नोटिस करने लायक, कि हियर द एंगल्स आर 90 डिग्री. हियर ऑल द एंगल्स, मतलब यहाँ पे मैं अगर बात करूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री जो है सर, हियर ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्या इन केस ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या ये चीज होता है? नहीं सर, इन केस ऑफ ए पैरेललोग्राम ये नहीं होता है. ओके, पैरेललोग्राम के कुछ और प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके एंगल्स को लेके वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर रेक्टेंगल का बात करें सर, रेक्टेंगल का ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है. उसके ऑपोजिट साइड क्या होते हैं सर? पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं ईच अदर से. सर स्क्वायर में क्या फर्क होता है सर? स्क्वायर में ये होता है कि सर इसमें चारों साइड सर एक दूसरे के समान होते हैं. ये इसका पहला प्रॉपर्टी है स्क्वायर का. दूसरा प्रॉपर्टी है सर ऑपोजिट साइड्स
डज पैरेलल टू ईच अदर सर, ऑपोजिट साइड्स यहाँ पे भी क्या होता है सर, पैरेलल होता है। और सर यहाँ पे 90 डिग्री भी होता है, यहाँ पे हर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। सर रोम्बस में क्या होता है, सर रोम्बस इज आल्सो अ काइंड ऑफ व्हाट सर, क्वाड्रिलेटरल सर। In case of a rhombus also, opposite sides are parallel. First of all sides are equal in a rhombus. Just do remember that all sides are equal in a rhombus. Opposite sides does parallel in a rhombus. लेकिन सर यहाँ पे इनके एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते हैं। अंडरस्टूड, यहाँ पे इनके एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते हैं। तो अब तक हमने डिस्कस क्या किया? अगर हम सबसे पहले बात करें सर पैरेललोग्राम का, in case of a parallelogram, opposite sides are equal and parallel to each other. It is not anywhere mentioned that कि इसके जो एंगल्स होते हैं वो एंगल्स भी 90 डिग्री हो, ठीक है। लेकिन सर अगर हम बात करें सर एक रेक्टेंगल का, सर रेक्टेंगल में सर डू opposite angles or sorry opposite sides are equal to each other and also parallel to each other sir, means AB is equals to CD and AD is equals to BC. Also sir, also AB is parallel to CD and AD is parallel to BC sir. ये चीज को आप याद रखेंगे। लेकिन सर कभी कभी हमको पूछ देता है is a rectangle a parallelogram? देखो आपको क्या बोलता है, is a rectangle a parallelogram? देखो ये चैप्टर को जानने के लिए आपको इन सब का प्रॉपर्टीज जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टर में नंबर करने के लिए अगर आपको ये फॉर्मूलेस नहीं पता है, यहाँ पे आपको इसका प्रॉपर्टीज नहीं पता है, तो आप एक भी नंबर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सर अगर मेरे को क्वेश्चन पूछता है सर, मैं इसको मिटा देता हूं, ओके मेरे को अगर क्वेश्चन पूछता है सर, ओके मेरे को क्या क्वेश्चन पूछता है सर, ये सब मैंने जो लिखा है ये सब नोट डाउन कर लेना, ओके पॉइंट वाइज। यहां पे आपको पूछता है इज रेक्टेंगल अ पैरेललोग्राम। देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहले सर रेक्टेंगल के सारे फॉर्मूलेस लिखने पड़ेंगे, ओके रेक्टेंगल के जितने लॉज हैं आप सबसे पहले रेक्टेंगल के लॉज लिखेंगे, ओके उसके बाद आप पैरेललोग्राम के लॉज लिखेंगे। सर ऐसा कहीं पे जरूरी नहीं है कि सर सब मैच हो, लेकिन सर इसके अगर मैक्सिमम चीजें अगर इसके साथ मैच हो गए सर, जैसे एक पैरेललोग्राम में क्या होता है सर, ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, ओके बस ये एक ही चीज गिवन रहता है सर इन केस ऑफ क्या बोलता है पैरेललोग्राम। अगर हम रेक्टेंगल का बात करते हैं सर, इसमें ये रहता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, लेकिन सर हमको यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चीज देता है कि सर ऑल द एंगल्स आर इक्वल, या तो इक्वल कह लो या फिर आप 90 डिग्री कह लो, दोनों चलेगा सर, ठीक है। क्योंकि सर आप अगर x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल्स टू 360 लेते हो तो सर x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री निकल जाएगा। तो सर आप ये भी कह सकते हो कि या तो 90 डिग्री है हर एक एंगल, या तो ये कह लो कि सर सारे एंगल एक दूसरे से क्या है सर, इक्वल है सर। मेरे को एक बात बताइए, एक रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज के अंदर, एक रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज के अंदर क्या पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो ए रेक्टेंगल, आपको क्वेश्चन क्या बोला था, इज रेक्टेंगल अ पैरेललोग्राम? आप लिख सकते हो यस। आप क्या लिख सकते हो, यस। मतलब जो आपको पहले दिया है आप उसके सारे प्रॉपर्टीज को जानना पड़ेगा, फिर आपको जिससे कंपेयर करने बोला है उसका प्रॉपर्टीज को जानना पड़ेगा। अगर इसके सारे प्रॉपर्टीज लिख दिए, इसके सारे प्रॉपर्टीज लिख दिए, और इसके प्रॉपर्टीज में जो पहले दिया है उसके प्रॉपर्टीज के अंदर अगर दूसरे वाले के प्रॉपर्टीज आ जाते हैं तो सर यस लिखोगे आंसर। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछता है सर, मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछता है इज पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, क्या एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है? सर पैरेललोग्राम के सबसे पहले लिखोगे आप रूल, फिर आप लिखोगे सर रेक्टेंगल के रूल। इसका रूल क्या है सर, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसके क्या है सर,
ऑपोजिट साइड वाला तो सर ये रूल है सर, ठीक है, ये वाला रूल तो है, और क्या है सर 90 डिग्री। एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप पहले वाले को लिखोगे फिर दूसरे, मतलब जिससे कंपेयर कर रहे हो, जिससे कंपेयर कर रहे हो उसके सारे गुण उसमें आने चाहिए, आप जिसको कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। मतलब क्या, पैरेललोग्राम के सारे गुण के अंदर रेक्टेंगल के सारे गुण आते हैं सर, ये 90 डिग्री नहीं आता। तो वी कैन से दैट अ पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल सर, कैन नॉट बी अ रेक्टेंगल, ओके, मे बी अ रेक्टेंगल इन सम केसेस, लेकिन सर इन एवरी केस सर अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली अगर मैं बात करूं स्क्वायर और रोम्बस का, रोम्बस में क्या था सर, रोम्बस का ये था कि सर रोम्बस के जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते, हालांकि सर उनके चारों साइड इक्वल होते हैं, लेकिन सर उनके चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होते। लेकिन इन केस ऑफ ए स्क्वायर सर पैरेललोग्राम से सर दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है सर। एक स्क्वायर का अगर मैं बात करूं, एक स्क्वायर का और एक रोम्बस का सर, इसके भी चारों साइड इक्वल्स हैं, इसके भी चारों साइड इक्वल है सर, तो कह सकता हूं सर इसके ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है सर, क्या पैरेलल है, हाँ सर, ऑपोजिट साइड्स तो एक दूसरे से पैरेलल भी है सर, लेकिन सर यहां पे सारे एंगल 90 डिग्री है, यहां पे सारे एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो मैं कह सकता हूं a rhombus cannot be a square, a rhombus cannot be a square। मान लीजिए आपको अगर क्वेश्चन पूछ लेता है क्या एक स्क्वायर, क्या एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, या फिर आपको पूछता है क्या एक रेक्टेंगल एक, हमको पूछता है क्या एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल है क्या सर। देखिए हम आ जाते हैं स्क्वायर के रूल्स पे, हम इधर आ जाते हैं सर एक रेक्टेंगल के रूल में। स्क्वायर का रूल कहता है सर 90 डिग्री सर, उसके बाद क्या बोलता है ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है। जब आप कह देते हैं सर ऑल साइड आर इक्वल, तब आपको यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं कि सर ऑपोजिट भी इक्वल हो, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल ही होंगे सर। मतलब अगर ये दोनों इक्वल है तो सर, अगर ये दोनों भी इक्वल है तो यहाँ पे आपको कहने की और जरूरत नहीं कि सर ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो, वो सर डायरेक्टली आपका क्या बोलते हैं, आपको पता चल जाता है कि सर अगर चारों साइड इक्वल है तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। उसके बाद चारों साइड इक्वल होता है, 90 डिग्री होता है, यहाँ पे क्या होता है सर ऑपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है, और सर और एक चीज क्या होता है 90 डिग्री होता है, क्या 90 डिग्री दोनों में है, हाँ सर, क्या 90 डिग्री दोनों में है, हाँ सर है सर। स्क्वायर का क्या बोलता है सर ऑपोजिट साइड, सॉरी चारों साइड क्या होने चाहिए सर इक्वल होने चाहिए, ये क्या बोलता है सर ऑपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए। तो सर आप जब बात करते हो क्या इज अ स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, हाँ सर, क्योंकि सर यहाँ पे अगर बात करें सर रेक्टेंगल का, सर रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी हमको क्या कहता है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी हमको कहता है कि सर ऑपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए, ऑपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए। क्या यहाँ पे स्क्वायर में वो चीज पूरा हो जा रहा है, हाँ सर हो जा रहा है। और बोलता है सर 90 डिग्री होना चाहिए, क्या वो पूरा हो जा रहा है, हाँ हो जा रहा है सर। तो रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, और रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। लेकिन सर क्वेश्चन को पलट दीजिए, इज अ रेक्टेंगल अ स्क्वायर, इज अ रेक्टेंगल अ स्क्वायर सर। रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल हमको क्या बोलता है सर 90 डिग्री, और क्या बोलता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। लेकिन स्क्वायर बोलता है 90 डिग्री और ऑल इक्वल, यहाँ पे हमको ये बोलता है ऑल इक्वल। क्या ये ऑल 90 डिग्री तो हो जाता है, क्या ये ऑल इक्वल हो पाता है, यहाँ पे नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑपोजिट सेम रहता है। तो दैट्स व्हाई सर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नो। इससे प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा यस। यस, अ स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बट अ रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड? इसके बाद हम लोग करेंगे अभी प्रॉपर्टीज, क्वाड्रिलेटरल के क्या करेंगे सर प्रॉपर्टीज। देखिए इसमें हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है ट्राइंगल्स, बिना ट्राइंगल्स के ये चैप्टर नहीं होने वाला बिल्कुल भी, ठीक है। आपको कॉन्ग्रुएंस आना चाहिए ये चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सारे थ्योरम पढ़ेंगे, अंडरस्टूड, जिसमें आता है कि थ्योरम नंबर 1 आता है। थ्योरम नंबर 1 हमको बोलता है अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या बोलता है सर, ये बोलता है एक पैरेललोग्राम में, एक पैरेललोग्राम को उसका डायगोनल
उसका डायगोनल उसको क्या करता है, टू इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में उसको क्या करता है, डिवाइड कर देता है। सबसे पहले सर हम बात करते हैं गिवन क्या है। सर गिवन ये कि मान लो इसका नाम एबीसीडी है, मान लेते हैं इसका नाम एबीसीडी है, तो हमको बोलता है सर गिवन ये कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। अंडरस्टूड, हमको क्या गिवन है सर, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। सर अगर पैरेललोग्राम है सर, देखिए अगर पैरेललोग्राम है तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए सर। एक पैरेललोग्राम में क्या होता है सर, साइड्स इक्वल होते हैं सर, ऑपोजिट साइड, मतलब ये साइड इज इक्वल टू ये साइड और ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, ये गिवन हो सकता है। अंडरस्टूड, या तो मान लीजिए अगर AB इज पैरेललोग्राम है तो ऑफ कोर्स AB इज पैरेलल टू CD, और सर आपका AD इज पैरेलल टू अ सर BC। तो सर ये मान लीजिए AB अगर पैरेलल है CD से, तो हमारा यहाँ पे BD क्या करेगा, एज अ ट्रांसवर्सल काम करेगा। अगर ये एज अ ट्रांसवर्सल काम किया सर, तो मुझे एक बात बताइए सर, यहाँ पे सर ये एंगल इज इक्वल टू दिस वाला एंगल होता है कि नहीं सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं सर। मतलब एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल ABD, हाँ या ना, ये है गिवन। और क्या हो सकता है सर, दिस वाला एंगल इज इक्वल टू दिस वाला सर, सिमिलरली सर अल्टरनेट एंगल। सर आपको इतनी सारी चीजें दिया है सर, आपको प्रूफ करने क्या बोला है सर, आपको बोला है टू प्रूव ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल, बोला है ना, टू इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इज इक्वल्स टू ट्राइंगल CDB। देखिए फिर से नेमिंग को ध्यान से दीजिए, जैसे यहाँ पे AB इज इक्वल्स टू CD बन सकता है, या फिर AB पैरेलल टू CD बन सकता है। दैट्स व्हाई मैं AB और CD को फर्स्ट और सेकंड में लिख रहा हूँ, ना कि उसको थर्ड में लेके लिख रहा हूँ, ठीक है। D कहाँ पे है सर, यहाँ पे। B कहाँ पे है सर, ऑपोजिट में है सर, इसलिए उसको मैं सामने सामने लिख पाया। तो जब आप नेमिंग देते हैं किसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है। आ जाते हैं सॉल्यूशन में। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CDB, इन ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल CDB। देखिए हमको बहुत सारा चीज गिवन है, पर हमको इतने सारी चीजें नहीं चाहिए सर। हमको कितनी चीजें चाहिए सर, 3 चीजें चाहिए सर। 3 चीजों के मदद से हम लोग हमेशा कॉन्ग्रुएंस को साबित कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और दिस एंगल और दिस एंगल। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं पहले एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल CDB, हाँ या ना, अंडरस्टूड। ये क्या है सर, अल्टरनेटिव एंगल एज AB इज पैरेलल टू CD। हमेशा आपको यहाँ पे एक पॉइंट लिखना पड़ता है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क्स 100% कटेगा, ठीक है। दूसरा वाला होता है सर ADB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CBD, ओके, सिमिलर सर, ठीक है, क्योंकि सर पैरेलल है। और सर एक और चीज क्या गिवन है सर, हमको यहाँ पे गिवन है सर BD इज इक्वल टू BD, मतलब गिवन नहीं है, लेकिन हम इसको क्या ले सकते हैं सर, एज कॉमन साइड ले सकते हैं। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, एज अ कॉमन साइड ले सकते हैं। तो एक बात बताइए, ये हो गया A, ये हो गया S, ये हो गया A, तो सर हम यहाँ पे कह सकते हैं सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CDB बाय ASA, ठीक है। हमको यही तो प्रूफ करना था, ठीक है, चलो खत्म। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं थ्योरम नंबर 2 पे। थ्योरम नंबर 2 क्या बोलता है, थ्योरम नंबर 2 बोलता है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल सर, ओके। थ्योरम नंबर 2 बोलता है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके। मैं इसको डिटेल में जाके सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन सर हमारा जो प्रीवियस नंबर था सर, हमारा जो प्रीवियस नंबर था ABCD नाम का, उसमें हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस साबित किया था। कौन सा सर, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल CDB को, अंडरस्टूड। तो सर हम लोगों ने इसको किससे किया था, बाय ASA, एंगल साइड एंगल से किया था। लेकिन सर हमने याद कीजिए वहां पे CPCT में कुछ प्रूफ नहीं किया था। अगर मैं उसी नंबर को फिर से कर दूं और CPCT से कह दूं कि सर AB इज इक्वल टू CD, क्या हो सकता है, हाँ सर, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस, तो सर AB इज इक्वल टू CD सर।
बाय CPCT। हमको बोला है ऑपोजिट साइड्स बोला है, मतलब हमको AD का भी बात कर रहा है और CB का भी बात कर रहा है। AD कौन है सर, फर्स्ट और थर्ड, CB कौन है सर, फर्स्ट और थर्ड। तो सर मैं ये भी लिख सकता हूं AD इज इक्वल्स टू CP, ये भी सर बाय CPCT। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। बस प्रीवियस नंबर को फिर से करिए, उसके बाद CPCT में आप इसको प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। आ जाइए थ्योरम नंबर 3 पे सर। थ्योरम नंबर 3 पे, थ्योरम नंबर 3 आपको बोलता है सर, इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सर देखिए सर, बढ़िया बात बोल दिया, ये थ्योरम काफी बेहतरीन थ्योरम है। हमको यहाँ पे बोलता है सर, हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है सर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सर डायग्राम सर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, डायग्राम ध्यान से बनाना पड़ेगा। गिवन क्या है सर, गिवन है सर AB इज इक्वल्स टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC। ओके, ये आपको गिवन है। टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, आपको ABCD को पैरेललोग्राम करना है। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा सर, याद करना पड़ेगा, रिकॉल कीजिए कि अगर पैरेललोग्राम है सर, अगर वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए सर, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए। ऑपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, पैरेलल भी होने चाहिए। सर यहाँ पे इक्वल तो दिया हुआ है, पैरेलल नहीं दिया है सर, पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा सर। सर पैरेलल कैसे प्रूफ करें, पैरेलल देखो यहाँ पे जो तरीका यूज करने वाला हूं, ये एक ही तरीके से, सिर्फ ये एक तरीके से कईयों नंबर इस चैप्टर के होने वाले हैं, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, ये एंगल मतलब एंगल CDB इज इक्वल्स टू एंगल ABD कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा कि सर ये लाइन पैरेलल टू ये लाइन, क्योंकि सर ये क्या करेगा, एज अल्टरनेटिव एंगल का काम करेगा, जबकि AB और CD पैरेलल होंगे, BD हमारा ट्रांसवर्सल होगा और ये एंगल इज पैरेलल टू ये वाला एंगल। सिमिलरली सर इस वाले लाइन के लिए भी सर, तो इस वाले लाइन के लिए भी सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का काम करेगा, तो सर वहां पे AD इज जो पैरेलल टू BC प्रूफ हो जाएगा। तो हमको करना क्या है सर, हमको ये चारों एंगल को ऑपोजिट वाले के साथ इक्वल करना है, या फिर इनमें से किसी एक को भी कर देते हैं, एक ही पेयर को बोला, ओके, ये पेयर या फिर ये वाला पेयर, तब भी सर हो जाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा सर, इक्वल तो मन इच्छा नहीं कर सकते, हमको कॉन्ग्रुएंस करना पड़ेगा। सॉल्यूशन में आ जाइए, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CDB। फिर से नेमिंग में ध्यान दीजिएगा, ओके। AB इज इक्वल टू CD सर, क्या है सर, हमको गिवन है, ऑपोजिट साइड सर गिवन है सर। AD इज इक्वल टू BC सर, अंडरस्टूड, यहाँ पे हमको ये क्या है, गिवन है। अब तीसरा साइड क्या होगा सर, कोई एंगल दिया नहीं है, आपके दिमाग में खुद हिट हो जाना चाहिए। जब से आप ट्राइंगल्स, अगर आप ट्राइंगल पढ़ के आए हो, अब अगर ये चैप्टर कर रहे हो, तो आई अज्यूम कि आपको कॉन्ग्रुएंस आता है अच्छे से। तो सर BC इज इक्वल टू BC कर दूंगा। क्यों सर BC इज इक्वल टू BC सर, कॉमन साइड सर, इफ इट इज अ कॉमन साइड। नाउ सर, तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CDB, अंडरस्टूड, ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CDB। तो सर मुझे करना क्या था सर, ये वाला एंगल, ये एंगल कौन है सर, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CDB सर बाय CPCT। मतलब मैं ये वाला दोनों एंगल को क्या किया, इक्वल कर दिया। अब दूसरे पार्ट पे आ जाइए इस सॉल्यूशन का। नाउ यहां पे लिखो एज लिखो एज एंगल ABD is equals to angle CDB, then AB is parallel to CD and AD is parallel to BC, because angle ABD and angle CDB act as alternate angles for triangle for AB parallel to CD and AD parallel to BC, अंडरस्टूड। ये अल्टरनेट एंगल जैसा काम करते हैं ऑपोजिट साइड्स के पैरेलल होने के लिए। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा।
अब आगे का जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम 8.4 से कंटिन्यू करेंगे और ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।